Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. Today I shall be bringing you the review of this Mercedes E200 Cabriolet. And this is a very special car, especially as you know Pakistan में ज़्यादातर E200 के बजाय C200 Cabriolet ज़्यादा हैं. This is a very sort of a one-off car and one of my personal favorite, and this is one of my favorite generations of E-Class, which was the previous gen का facelift, and it's a soft top जिसकी वजह से it's a Cabriolet. क्योंकि अगर हार्ड होती है it's called a spider. We're going to go in that detail in a bit. With a black interior, it looks beautiful. With this E200, it's not only style. I know it's a style too, but it's also practical. For me, C200 ज़रा impractical इस तरह हो जाती है क्योंकि the rear passengers don't have any room. इसमें भी it's not a lot, but it's bearable. And जैसे मैंने कहा, it's a rare car. Hence, first of all thanks to the owner for trusting me with his beauty. And today, I'm going to be taking you around this car. And at the end, I'm going to be telling you, okay, is it worth it? Like, let's see. Because this Mercedes is based on your E-Class, so the platform is a E-Class platform. Hence, आपके पास एक E-Class वाली elongated width आ जाती है. It's मतलब it looks like a beefier car. And we also have an SL. All right. अब जो S class की Cabriolet है वो ख़त्म हो गई है. Now it's an SL. और वो आप इमेजिन करें इससे थोड़ी सी लंबी होगी. A certain person, it's very wide. तो ज़ाहिर बात है वो एक S कैटेगरी आ जाती है. This is an E कैटेगरी, एक C कैटेगरी है. And for my taste, मेरे ख्याल से the E is a perfect blend. Starting with the front, you have a very beautiful Mercedes E-Class elegant shape, और especially क्योंकि ये facelift है, so I just love this entire front look. And क्योंकि this is not an AMG model, hence you have got this Mercedes stars going all around here. Huge Mercedes आपके पास front grille आ जाती है, 3-pointed star in the center. You have all the adaptive things in here. ये Mercedes के लोगों के पीछे they are hidden away, जैसे आप देख सकते हैं. और ये heated भी है in case ये it gets covered with snow, तो आपके वो रेडार्स प्रॉपर्ली काम नहीं करते. ये आपके हेक्सागोनल पैटर्न्स बने हुए हैं ऑल द वे, जो आपकी स्टार लाइट को एम्फेसिस कर रहे हैं. दिस इज ऑल पियानो ब्लैक. ये भी क्रोम बड़ी एलिगेंटली जा रही है, नथिंग ओवर डन. ये में सारा पियानो ब्लैक सराउंड जा रहा है. मूविंग एट द टॉप, यू हैव गॉट अ वेरी वेरी फ्लैट yet beautifully bulged out hood. All right, you've got two strong character lines going all the way here, जो कि आपकी सेंटर में आके ग्रिल के साथ इंटीग्रेट हो रही हैं. आपके पास ये दो bulges भी हैं to emphasize there's a beast inside, but ये beast वाला वेरिएंट नहीं है. जो beast वाले वेरिएंट होते हैं that's in E53 इसमें आता है, लेकिन ये वो वाला नहीं है. This is a standard E200, the standard Mercedes Benz badge in black, not a AMG badge क्योंकि this is not an AMG kit. जैसे मैंने आपको कहा, the hood is very wide with strong lines और दो bulges आ जाते हैं. And एक sort of आपकी एक center line भी चल रही है, but it's very very difficult to note. But एक sort of एक गाड़ी को ना center look से गाड़ी कट कर रही है. Moving here, we have got thankfully ये जो मुझे headlamps है ना, I really like them. On the contrary, अगर मैं प्री फेसलिफ्ट में जाऊँ, मुझे प्री फेसलिफ्ट की फ्रंट लैम्प्स और रियर लैम्प्स नहीं अच्छे लगते थे. फेसलिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है. ऑलराइट, वी हैव गॉट योर DRL हेयर, योर लो बीम हाई बीम्स इंटीग्रेटेड, एंड इसमें आपके इंडिकेटर भी हैं. ये आपके पार्किंग्स हैं. एंड ओवर हियर यू कैन सी मल्टी बीम LED. अंदर बहुत लाइक अच्छी एक ड्रेसिंग हुई है. यू कैन सी ऑल द ब्लैक्स, वेरी वेरी मॉडर्न लुक, जैसे आप ये भी देख सकते हैं. एंड ये आपकी कॉर्नरिंग पार्किंग लाइट्स हैं. नीचे मूव करें तो दिस इज़ अ नॉन AMG वेरिएंट. अगर AMG होता तो आपके पास यहाँ स्लैट्स होते, एंड जो आपकी E53 वाली होती है उसमें दे आर एक्चुअल वेंट्स. ठीक है, तो यहाँ सॉर्ट ऑफ वी हैव अ कर्टन गोइंग ऑल द वे हेयर, जो कि आपका फिर ये पेंटेड सेक्शन ऊपर रेस अप होता है. वी हैव गॉट योर फ्रंट टो हुक एंकर पॉइंट ओवर हेयर. एट द फ्रंट वी हैव गॉट 6 parking sensors, 1, 2, 3, and 3 on the other side. Your number plate pin is right around here. That's your air intake, your lower piano chrome trim attached here. This is all plastic. ये आपके दो fins आ जाते हैं again in plastic. ये piano black है, and this is an functional air channel, जो कि एयर यहाँ से जाके यहाँ से एग्जिट करती है. सो दिस इज़ एक्चुअली फंक्शन. आफ्टर दैट आपकी बड़ी ही प्यारी एक लाइन यहाँ से फ्लो कर रही है, और ये मुझे बहुत ही एस क्लास रेमिनिसेंस दे रही है, जो आपकी 2014 वाली एस क्लास थी. द लाइन गोइंग ऑल द वे हेयर, जो कि बड़ी ब्यूटीफुली कट कर रही है. अगेन आपका जो नीचे वाला, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स फ्लोइंग ऑल द वे हेयर. तो यहाँ से भी एक आपकी सॉर्ट ऑफ एक डिस्टिंक्शन
बेंड हो रहा है फॉर बेटर क्लासीनेस। एक डिसअपॉइंटमेंट है कि ये देखें ये सारा इतना पियानो ब्लैक ब्यूटीफुली आ रहा है। वाई इज दिस ऑल इन स्क्रैची प्लास्टिक? होना नहीं चाहिए, बट दिस अनफॉर्चुनेटली इज, एंड दैट्स योर हिडन टेक। मूविंग एट द साइड, दिस इज वेयर दिस कार स्पीक्स, एंड दिस इज वेयर आपकी जो पैसे आपने खर्चे हैं ना वो आपको पता चलता है। मैंने जान के इसकी अभी रूफ डाउन किया है। इट्स अ सॉफ्ट टॉप, दिस हैज़ अ मेटल फ्रेम और इट्स अ मल्टी लेयर्ड रूफ। ठीक है, तो इसकी इंसुलेशन काफ़ी हार्ड टॉप गाड़ी से बेहतर होती है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। इट्स अ वेरी वेरी सॉलिड थिंग अप देयर। मूविंग एट द साइड, इट्स वेरी प्लेन, नॉन स्पोर्टी है और बहुत ही एक एलिगेंट टच है। अगर हम लाइंस की बात करें, वी हैव अ लाइन जो मैं बता रहा हूँ हुड से जाके फ्रंट विंडशील्ड में कंटिन्यू हो रही है। साइड पे आपको कोई ऐसे प्रोमिनेंट लाइन उस तरह नहीं मिलेगी, बस एक लाइन है जो आप देखें ये आपकी सेंटर से फ्लो करी है अपवर्ड्स, और वो रियर बम्पर्स में इंटीग्रेट होकर रियर बम्पर को रैप कर रही है। उसके अलावा तकरीबन आपकी एक बहुत ही है स्मूथ सा कर्वेचर चल रहा है, जो ये सारा स्मूथ कर्वेचर इज गोइंग ऑल द वे to the back. After that, we've got side sills. अगर आपकी AMG होती तो a larger side sill would be here. You got the side sill, और गाड़ी क्योंकि this is a private import car, तो I don't think so शाहनवाज ये ऑफ़र करता था पाकिस्तान में। तो इसकी रोड हाइट उस लिहाज से ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखें तो स्क्रैप्स आ जाते हैं क्योंकि इसकी हाइट पाकिस्तानी रोड के लिहाज से थोड़ी सी नीचे है। अगर ये शाहनवाज इंपोर्ट होती ना तो इसकी थोड़ी सी ऊपर हाइट ज़रा होती। मूविंग एट द अलॉयज, बाय द वे लाइंस की जो मैं बात कर रहा था, तो आपके पास आर्टिस के अराउंड यू हैव स्ट्रॉन्ग लाइंस। ठीक है, एक पीछे एक आगे, आर्टिस के अराउंड यू डू हैव देम। एंड टॉकिंग अबाउट द alloys, this has AMG alloys, and it's 5 spokes अगर आप देख सकें, 5 वाइज बने हुए हैं। इट्स इन पाउडर कोटिंग ग्रे विद मेटेलिक क्रोम्ड टचेस हैं, काफ़ी अच्छे हैं। सॉर्ट ऑफ ये एक डबल लुक्ड आ रहे हैं। ठीक है, ये और ये, एंड मर्सिडीज एम्बलम देयर। इस गाड़ी में ऑफ कोर्स दे आर ऑल लाइक टॉप एंड ब्रेकिंग हिट्स, नॉट सिरेमिक स्टील्स हैं आपके पास। और ऑन द 4 व्हील्स इंसुलेशन इज़ वेरी वेरी नाइस आई मस्ट से। एंड इस गाड़ी का जो टायर साइज़ है, दैट इज़ गाड़ी में प्रोरेडीज डाले हुए हैं, इट इज़ 245/40 R19। ओके, इट्स अ 19 इंच alloy, एंड इसके पीछे भी सेम ही alloy का सेट है। दिस इज also a 19 inch, yes, same, not staggered. For regulation compliance for the AMG, आप देख सकते हैं कि आपके पास ये प्रोट्रूजन है। ये बेसिकली रेगुलेशन होती है, गाड़ी का जो टायर होता है वो बॉडी से बाहर नहीं आ सकता। तो विद बिगर व्हील्स जो थोड़े से प्रोट्रूड होते हैं, उसके लिए इन्होंने ये लगाया हुआ है कि वो बॉडी के अंदर ही रहे। आफ्टर दैट, टॉकिंग अबाउट द विंग मिरर्स, वी हैव गॉट दीज विंग मिरर्स। मर्सिडीज़ की ये जो क्लासिक टर्न सिग्नल LED टर्न सिग्नल्स थे, ऑल दिस पियानो ब्लैक 360 कैमरा हेयर, बॉडी कलर, ये सेक्शन जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, देखिए ये पियानो ब्लैक है, ये सब पियानो ब्लैक है। फ्रंट पे ही पियानो ब्लैक कर देते उन्होंने, वो जो चीप आउट किया है। विंग मिरर का साइज़ काफ़ी अच्छा है, वो आपको ड्राइविंग इंप्रेशन में पता चलेगा। ये कॉन्वेक्स मिरर है, एंड इट्स सीटेड टू ऑल द फैंसी स्टफ इन दिस। मूविंग एट द विंडशील्ड, इस गाड़ी में सारे अडाप्टिव एवरीथिंग। आप ये देखें कि इसमें ऑल दिस कॉर्नर इज़ इन पियानो ब्लैक। ये आपका ए पिलर है, एंड दिस इज़ योर विंड डिफ्लेक्टर। जब आपकी स्पीड ज़्यादा हो तो अल्टीमेटली आपका ये जो विंड डिफ्लेक्टर होती है ऊपर हो जाता है, कि जो इनर पैसेंजर्स हैं उनको कम से कम वो एयर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़े। लाइकवाइज आपका जो रियर डिफ्लेक्टर यहाँ लगा हुआ ये भी रेज अप हो जाता है टू अ सिग्निफिकेंट डिग्री, राइट। आफ्टर दैट, टू एम्फेसिस के दिस इज़ अ convertible, you have all this satin chrome touches going all the way here, और ये पीछे तक रैप अराउंड होते हैं। मूविंग एट द बैक, दिस इज़ द साइड जो कि अगेन मुझे बड़ी पसंद है। सबसे बड़ी रीज़न, आपकी जो ई क्लास की रियर लैम्प्स थे ना, वो मुझे प्री फेसलिफ्ट में कभी भी अच्छे नहीं लगते थे। फेसलिफ्ट में अच्छे है, लेकिन इसके मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। दे आर स्ट्रेट, नो कॉम्प्लिकेशंस, लाइक या परफेक्ट। ठीक है, ये हैव गॉट दीज। अच्छा, ये मर्सिडीज एस क्लास की वो जो बार से पहले वाले ये टेल लैम्प डिज़ाइन है, तो यू हैव गॉट योर इंटायर टर्न सिग्नल अप देयर, योर ब्रेक लैम्प, योर रियर लाइट्स आर हेयर, एंड आफ्टर दैट जैसे मैं आपको बता रहा था, वो जो एक रियर लाइन है वो यहाँ से रैप अराउंड होकर पूरी गाड़ी के पीछे एक रैप अराउंड कर रही है। एंड अगेन विद दिस रियर बूट आपके पास है कि इस तरह की क्रॉस लाइन्स जा रही हैं। योर मर्सिडीज एम्बलम इज़ हेयर, एंड दिस हैज़ योर इंटीग्रेटेड रियर रिवर्स कैमरा।
E200 इफ़ दिस वाज एन AMG तो आपकी बैजिंग से पता चल जाता है। आपकी जो बूट है इस पर कोई स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है, बस आपके जो कॉर्नर्स हैं वो यहाँ से एक लाइन शुरू होती है और रैप अराउंड होती है और डबल लाइन भी इसके साथ साथ है। एंड यहाँ से थोड़ी इंडेंटेशन अंदर है, दैट्स योर हाई अमाउंट ब्रेक लैम्प, क्योंकि इस गाड़ी में यू डोंट हैव अ फिजिकल हार्ड रूफ, वरना आपके ब्रेक लैम्प हमेशा ये ऊपर वाली साइड पे होते हैं। तो यहाँ इट्स ऑन द टॉप ऑफ द डेक लिड। एंड ये जिसमें सैटिन है, दिस इज़ ऑल लाइक योर लेदर टेक्सचर्ड मटेरियल। एंड दैट्स योर रोल बार। अगर आप देख सकें कि इनकेस गाड़ी की कोई एक्सीडेंट हो तो रोल बार्स आ जाती हैं कि ऑक्यूपेंट्स सेफ रहें, इनकेस आपने छत खोली और गाड़ी के साथ कोई इस तरह का इवेंट हो जाए, अल्लाह ना करे। मूविंग डाउन हेयर, क्योंकि जैसे मैंने कहा फ्रंट में भी हैव 6 पार्किंग सेंसर्स एट द रियर, ये वॉल्स ऑफ 6 पार्किंग सेंसर्स, और एक लाइन वहाँ से आ रही है अगेन नीचे से, वो जो फ्रंट आपकी साइड स्कर्ट है वही कंटिन्यू होकर पीछे भी आ रही है जो पीछे से फ्लो कर रही है। एंड एट द बैक अगेन मेरी वही वाली शिकायत जो फ्रंट पे भी थी कि ये सारा स्क्रैची प्लास्टिक मटेरियल इन्होंने दिया हुआ है, जबकि बाकी पियानो आ रहा है, ये होना नहीं चाहिए। योर रियर रिफ्लेक्टर्स हियर, अ फेक वेंट ऑन ईदर साइड। मैं ये नहीं चाह रही एक्चुअल हूँ, बट एटलीस्ट यहाँ कुछ बेहतर हो सकता है। ये बेसिकली उन्होंने AMG के लिए किया, AMG में एक्चुअल वेंट्स आ जाते हैं। ये नंबर प्लेट प्रिंट हेयर, LED इल्यूमिनेशन सारी गाड़ी में है। एंड दैट्स योर रियर टो हुक एंकर। ओवर हेयर यू हैव दीज एग्जॉस्ट टिप्स जो कि थैंकफुली रियल हैं। आई थॉट कि क्लोज्ड होंगे और नीचे से एग्जॉस्ट टिप होगा। ऑल योर हेक्सागनल सैटिन क्रोम टचेस हेयर, ये भी पूरा आपका क्रोम टच जा रहा है। योर फेक डिफ्यूज़र, और गाड़ी की नीचे से भी इंसुलेशन काफ़ी अच्छी है, एंड दैट्स एन एक्चुअल एग्जॉस्ट टिप टू। आफ्टर दैट इस गाड़ी की अगर पेंट की बात करें तो इट्स I just forget the official name of this paint color, but this is a metallic white, और इसकी ना बड़ी एक प्यारी सी शाइन है, and it looks really beautiful. And talking about the key, क्योंकि ये Mercedes की updated MBUX भी run कर रही है, तो you have this updated Mercedes key in which you have this piano section, your silver sections, and you have this lock, you have this unlock, और that's how you open the boot. इस गाड़ी के अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो वो भी बड़े कन्वेंशनल हैं। They've got the piano touches on the top, your body color on the bottom, और that's how you lock it और that's how you unlock it। तो ये इस तरह अनलॉक हो जाते हैं। एंड इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल मिरर्स बिल्कुल हैं, वो ऑप्शन इस टाइम बंद हुआ हुआ है। और आपके जो मिरर ट्रायंगल्स हैं ये भी पियानो ब्लैक हैं, ऑफिशियल मर्सिडीज़ होने का कि ये जो होते हैं ना, मतलब दीज आर एन ऑफिशियल थिंग कि भाईजान आपकी ऑफिशियल गाड़ी है। ये जितनी भी लाइन्स चल रही है ना, दीज आर योर फ्रंट डिफ्रॉस्टर्स, जो कि आपकी नॉर्मल गाड़ी में नहीं होती, लेकिन इस गाड़ी में है ये चीज़ें। अगेन योर वाइपर्स। नाउ लेट्स मूव एट द बूट ऑफ दिस कार। ये आपका फ्यूल फिलर कैप भी आ जाता है। ओपनिंग ऑफ द बूट ऑफ दिस मर्सिडीज, इस गाड़ी में स्मार्ट बूट भी है। यू जस्ट डू इट लाइक दिस और ये ऑटोमेटिकली आपका बूट अनलॉक हो जाता है। इट्स नॉट एन ऑटो बूट, इट्स अ स्प्रिंग लोडेड बूट, तो ऑटोमेटिकली खुलता है। जो स्पेस है फॉर अ कन्वर्टेबल, इट इज़ रीजनेबल, इट्स नॉट द मोस्ट इन द वर्ल्ड, बट दिस इज अ ट्रिक। ओवर हेयर आपकी इस टाइम रूफ जो है दैट इज स्टोर्ड इन दिस पार्शल, ऑलराइट, द लोडिंग हैच। लेकिन अगर मैं इसकी रूफ ऊपर करूँगा तो ये लोडिंग हैच एम्प्टी हो जाएगा, तो आपकी रूफ इंक्रीज हो जाएगी। लेट मी शो यू इन अ बिट। उसके बाद वी हैव दिस फॉर 2 पर्सन, अगर आपकी रूफ नीचे हो तो इट बी अ बिट डिफिकल्ट, डैम्प्ड है सारा। एंड बिलो दिस दिस नो स्पेयर टायर, नथिंग लाइक दैट। योर टो हुक एंकर वहाँ जाता है, या आपके सारे फ्यूजेस हैं, दिस नथिंग इसके नीचे। यू गॉट योर बैटरी, दैट्स योर LED वार्म इल्यूमिनेशंस हैं, योर एंकर हेयर लाइकवाइज देयर टू। और अगर आप ये बटन्स देख रहे हैं तो बेसिकली हैं क्रोम, गुड क्वालिटी। यू इंगेज दिस तो आपकी जो सीट है वो पूरी फोल्ड हो जाती है, और लाइकवाइज मैं इसे भी करूँ तो आपकी 40-40 एग्जैक्ट सीट फोल्ड होती है। योर नेटिंग हेयर अ बिट, आपके एंकर पॉइंट्स आ जाते हैं, ये जो एंकर्स लगे हुए हैं। एंड यस, ये भी प्लास्टिक में है, एस होती तो ये सारा क्रोम होता। इस गाड़ी में एक है कि दिस अ बिट लोड लिप, ठीक है, लोड लिप काफ़ी है कि मतलब इफ़ यू पुट अ थिंग इनसाइड तो वो काफ़ी एक ज़रा डेप्थ है उसकी, तो इनकेस कोई भारी चीज़ है तो आपको निकालनी पड़ेगी। फिर ये थोड़ी सी इन्होंने प्रोटेक्टिव आपकी स्क्रैप प्रोटेक्शन के लिए बनाया है, बट इनकेस कोई भारी चीज़ आपसे ना खींचे तो आपको बम्पर भी डैमेज हो सकता है। सो यस, दैट इज़ दिस बटन जिससे इसका ये लोड एरिया ऊपर हो जाता है। दैट्स योर लाइट जो कि यहाँ जा रही है, एंड योर इंडिकेशन फॉर योर अपकमिंग ट्रैफिक के better be aware, and that's your handle to close it up. Before moving forward, मैं आपको ना सबसे पहले इसकी रूफ मैकेनिज्म दिखाना चाहूँगा। तो इफ़ आई स्टार्ट अप द कार,
The car is on now. That's how you put the roof back. So it's coming up. By the way, जितनी देर तक roof होती है, you actually have to hold the button. ठीक है? And we're gonna wait for this जब तक ये मेरा indication नहीं आता. Alright, perfect. The roof is done. Now let me show you. जब गाड़ी की roof up हो जाए, this is the view you get. इस गाड़ी में आपके पास options होते हैं. You can get a black roof and you can get a dark blue roof. This is a maroon roof और जैसे मैंने आपको बताया, it's a multi-layered roof, तो आपको परेशानी नहीं होती सिक्योरिटी की, लेकिन हाँ इसे मेंटेन रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. ये आपकी क्वार्टर विंडोज़ हैं, मेन विंडो इज़ देयर एंड दैट्स अ रियर विंडो. ये आपके डिफॉगर्स चल रहे हैं, आपके रियर 2 स्पीकर्स हैं. और लेट मी टेल यू, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इफ़ आई ओपन दिस अप, ठीक है, अब आप देखिएगा, इफ़ आई प्रेस दिस बटन, ये आपका ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाता है. और जब ये लिफ्ट हो जाता है तो आप देखेंगे आपके पास स्ट्रेट अवे देन यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस. ऑलराइट, अब आप देखें कि कितनी ज़्यादा, अब आप आराम से लाइक आई थिंक 3 बंदे तो आराम से अगर हैवी लगेज लेके आए आराम से रख सकते हैं. तो यस, और जब वो ऑटोमेटिकली जब उस रूफ के नीचे आना ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी. मतलब अब अगर मैं रूफ नीचे करूँगा ना तो वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगी कि मैंने उसे लाइक आई प्लेस्ड इट डाउन. नाउ बिफोर मूविंग इनसाइड, बाय द वे इसका इंटीरियर बहुत ही प्यारा है. दिस इज़ ब्लैक with red interior, good combination I must say. Well, let me just open the hood of this car. The lever is down here, the red lever. You pull this and here's the latch. This is the engine bay of this car, very very nicely damped. Along with that you have hydraulic struts on both the ends. Talking about the engine, क्योंकि ये E200 है, we have inline 4-cylinder turbo engine which produces 197 horsepower and 320 newton meters of torque, and this is a rear wheel drive car. All the power is flowing to the rear wheels. इंसुलेशन काफ़ी अच्छी है. जैसे मैं कह रहा हूँ, इंजन में आपको थोड़ा थोड़ा ठीक है फुल लग रहा है, लेकिन अगर आपने एक AMG देखी हो ना तो फिर आपको लग रहा होगा ज़रा इतना लाइक खाली खाली है. दैट्स योर हीट शील्डिंग, आपका बैटरी टर्मिनल, वाटर फ्लूइड, आपके रेजरवॉयर वो आ जाता है, कूलेंट लेवल्स, योर एयर इनटेक, वेरी गुड पैकेजिंग आई मस्ट से. और ऊपर डैम्पनिंग आप देखें कितनी सॉलिड है. सो यस, लेट्स क्लोज इट अप एंड बिस्मिल्लाह करके. Oh, what a solid thud, guys. What a solid thud. Moving inside Q, okay, this is a convertible. It's not a 2+2. 2+2 में होता है कि पीछे बहुत ही कम जगह होती है, इसमें एक्चुअल जगह है. I'm going to show you. Opening the door up, क्योंकि दिस इज़ अ कन्वर्टेबल, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट डोर है वो ठीक ठाक बड़ा है. लाइक मतलब अगर आपकी नॉर्मल E-क्लास का डोर यहाँ आता है ना तो दिस इज़ 50%, about 40% more than that. These are all frameless windows, which means कि इनके अराउंड कोई फ्रेम नहीं होता, ये डायरेक्ट विंडोज़ ही हैं. और जैसे आप इन्हें खोलते हैं थोड़ी लोअर हो जाती हैं कि ये जितना भी आपका प्रेशर है वो बाहर निकल जाए. ओपनिंग द डोर वाइड, दिस इज़ हाउ बिग द डोर इज़. ऑलराइट, मतलब नॉर्मल डोर यहाँ ख़त्म होता है. दैट्स हाउ इलोंगेटेड दिस इज़. क्योंकि मैं कह रहा हूँ दिस हैज़ ब्लैक विद रेड इंटीरियर, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. ऊपर यू हैव दिस सॉफ्ट पैडेड लेदर हेयर, योर ग्रे स्टिच गोइंग ऑल द वे, एंड इन दिस यू हैव दिस डार्क ब्राउन वुड, वुडन टेक्सचर पूरा जा रहा है. बर्मिस्टर साउंड सिस्टम है. यू गॉट योर एयर स्काफ हीटिंग जो कि यहाँ होती है, दैट जब आप ओपन एयर में जा रहे हो और ठंड हो तो ये आपका एयर स्काफ होता है कि आपकी नेक को वार्म रखता है. और जब आपकी द रूफ इज़ डाउन तो आपका एयर कंडीशनिंग जो नॉर्मल E-क्लास से ज़्यादा इसमें पावरफुल है कि द इंटीरियर ऑक्यूपेंट्स स्टे एट कम्फर्ट. ऑलराइट, दैट्स योर सीट हीटिंग जिसके 3 लेवल्स हैं, एयर स्काफ के भी 3 लेवल्स हैं. यू हैव 12-वे पावर इलेक्ट्रिक सीट्स with memory options too. 3 memory का options है आपके पास, beautifully outlined in chrome. ये satin है, this is a bit more polished chrome. This is your chrome lining flowing all the way here जो कि interior में continue हो रही है. Looks beautiful. And along with this is your soft leather all the way here. आपका airbag भी यहाँ लगा हुआ है. That's your red leather here जो कि आपका armrest है, और ये बहुत ही soft है I must say. ये एक normal E-क्लास से इसकी बहुत अच्छी quality है. Like, this is really really good. All right, आपकी रेड स्टिच जा रही है नीचे भी. All right, this is all scratchy plastic. I thought कि ये भी होगा जैसे वो C63 में ये भी सॉफ्ट था, इसमें ये वाला नहीं है. ये भी सारा आपका हार्ड प्लास्टिक है. That's your boot release in chrome, लेकिन ये जितना भी ये हार्ड है. बॉटल होल्डर एंड अ बिट मोर. अच्छा, ये अंदर से लाइंड भी नहीं है, मतलब इट्स प्लास्टिक.
ठीक है, ये नीचे रबराइज्ड है। ये जितने भी इंसर्ट्स हैं ये भी सारे स्क्रैची हैं। दैट्स योर लॉक एंड अनलॉक बटन, योर डोर पुल जो कि इट्स इन क्रोम, दीज आर योर विंडो कंट्रोल्स, दैट्स योर रिट्रैक्टेबल मिरर के लिए टू क्लोज द मिरर्स। जौन सा भी आपने मिरर एडजस्ट करना है उसकी इंडिकेशन करें, यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल योर विंडो कंट्रोल्स आर वन टच ऑटो और इनकी बड़ी अच्छी डैम्पनिंग है। एंड अलॉन्ग दिस ये ऑल क्रोम है। एंड दैट्स योर विंडो लॉक जो कि आपने स्पेसिफिक करना हो। इसके साथ साथ यू हैव अ रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट एंड अ डैम्पनिंग लाइट जो कि आपकी पैडल लाइट होती है। मूविंग इनसाइड वी हैव Mercedes की क्रोम सिल्स आ जाती हैं। एंड यू हैव गॉट 4-वे लंबार सपोर्ट टू, तो अगर आप उन सबको इंक्लूड करें इसके साथ यू हैव अ टोटल ऑफ 16-वे पावर इलेक्ट्रिक सीट्स। ये सारा ज़रा स्क्रैची है, आई विश ये भी ज़रा बेहतर होता। मटीरियल्स में इन्होंने, क्वालिटी में ना इन्होंने कोई Mercedes ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया मुझे। दीज आर द सीट्स ऑफ दिस Mercedes, अपेरेंटली बड़ी कंफर्टेबल है। मैंने थोड़ी सी ड्राइव की है, मोर आपको डिटेल उसमें मिल जाएगी। तो ये आपकी नॉर्मल ई क्लास से थोड़ी सी डिफरेंट सीट्स होती हैं। ये जो आपकी ये वाली शेप है ना, ये आपको नॉर्मल में यहीं ख़त्म होती है सीट, लेकिन इसमें कंटिन्यू होती है। आपकी रेड इंसर्ट्स आ जाते हैं विद योर वर्टिकल स्ट्राइप्स जो कि स्टिच्ड हैं। जो ब्लैक पार्ट है उन सब पे आपका ये ग्रे लाइंस जा रही हैं। ये बैग है टू, इन ऑर्डर टू मूव एट द बैक यू एक्चुअली हैव टू पुल दिस लीवर, इट्स इन क्रोम एंड यू पुल दिस, और आपको इसे पुल करके ही रखना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली सीट इज़ मोटराइज, तो ये ऑटोमेटिकली आगे मूव हो जाती है टू अ पॉइंट इन विच इट्स कंफर्टेबल टू गेट बैक। सीट बैग्स की बात करें तो थैंकफुली दीज आर सॉफ्ट टच। आपके पास ये सेंट्रल पैड जो है ये देयर हार्ड प्लास्टिक, एंड ये भी आपके पास सारा सॉफ्ट पैडिंग लगा हुआ है। मूविंग एट द बैक, क्योंकि मैंने इस सीट को आगे किया था तो लेट मी जस्ट पुश द सीट बैक्स इन। तो एंट्री आपके लिए मुनासिब होती है। जब आपकी छत नहीं होगी फिर तो आपके पास हेड रूम एम्पल होगा, आप आराम से यू कैन मूव इन। सो मूविंग इन साइड द कार, ओवर हेयर यू टेक अ स्टेप इन साइड, एंड जैसे मैंने कहा फ्रंट की तरह यहाँ भी वही थीम चल रहा है। आपके पास आइसोफिक्स पॉइंट्स यहाँ भी लगे हुए हैं। एंड यहाँ हम बात करते हैं हेड रेस्ट, डिफ्लेक्टर और लाइट्स। अगर हम यहाँ मूव करें तो आई एम 5'10", ऑलराइट। और अगर मैं सीट लीवर को इस तरह करूँ एंड आई एम गोना वेट फॉर दिस टू गेट बैक। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, मैं अपनी दिस सीट इज़ इन माई प्रेफर्ड पोजिशन, दिस इज़ हाउ आई वुड ड्राइव द कार। तो इस तरह आई कैन नॉट सिट अप स्ट्रेट, मतलब माई लेग्स हैव टू बी एट एन एंगल। मेरे पास फुटवेल्स में अच्छी जगह है। आई ऑल्सो हैव अ इल्यूमिनेशन देयर। इसके जो फ्लोर मैट्स हैं वो बड़े अच्छे हैं एंड देयर इज़ अ ह्यूज सेंटर। हम बाय द वे इट्स अ 4-सीटर, इट्स नॉट अ 5-सीटर, इसलिए आपके पास यहाँ कोई सीट नहीं है। 2 कप होल्डर्स हैं एंड दिस इज सॉफ्ट टच, ठीक है। नो आर्म रेस्ट नाइदर, यहाँ भी वो भी नहीं है। और आप यहाँ इसका एक रियर शेल्फ भी लगा सकते हैं फॉर कि आपको ये कवर्ड रह गए या पीछे नहीं, आप यहाँ सामान भी रख सकते हैं। एंड आपके पास एक टाइनी सा एक आर्मरेस्ट है, बर्म असिस्ट साउंड सिस्टम का एक स्पीकर लगा हुआ है इन क्रोम, एंड दैट्स हाउ यू कैन लोअर योर विंडो टू। इसका स्विच है क्योंकि गाड़ी अभी लॉक्ड है, मतलब इट्स नॉट ऑन, विद अ क्रोम आउटलाइनिंग, और ये क्रोम स्विच का बड़ा अच्छा है। अच्छा जी, सीट पे बात करें, मैंने आपको बताया आइसोफिक्स है, योर बेल्ट है ठीक बोल्स्टर्ड है एंड आपकी कॉर्नर स्टिच भी जा रही है, बट ये ना थोड़ी अपराइट है फॉर अ पर्सन लाइक। बिल्कुल जो सीट का हेड है मेरे सामने है, तो मैं कैमरा सामने नहीं कर सकता, तो मेरे पास जो हेड रूम है वो ठीक है, लाइक आई हैव दिस मच अमाउंट। लेकिन जो सीट का बैक है ना वो काफ़ी स्ट्रेट अप है, तो फॉर अ पर्सन लाइक मी, मतलब मैं यहाँ ना आई कांट, लंबी जर्नी ठीक है कर सकते हैं, बट ये ना मुझे फॉर्च्यूनर की याद करा रहा है। जो फॉर्च्यूनर की 7th रो होती है ना, जिसमें आप बिल्कुल ये बैठते हैं, तो इसमें आप बिल्कुल ये बैठे हुए हैं। मतलब अगर आप मेरी बैग देखें ना, आई एम नॉट इंक्लाइंड अ बिट। तो ये ऊपर से मेरा बस ठीक है, हेड रूम इतनी सी है, बट द लेग रूम इट्स नॉट समवेयर आई वुड लाइक टू स्पेंड मच ऑफ माई टाइम, लेकिन अगर करना हो तो हो जाएगा, इट्स नॉट बैड। 2 A1s ऑल्सो सर्कुलर हैं, क्वालिटी इनकी बड़ी अच्छी है। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ भी पियानो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये Mercedes is very confusing at the moment, and ये आपकी क्रोम आउटलाइनिंग आ जाती है। यहाँ कुछ नहीं है, there are no power outlets. I guess there should be power outlets. Yes, there are 2 type C power outlets, an ashtray जो कि which is useless, यहाँ वो हाउस होल्ड स्टाइल पावर आउटलेट डाल देते हैं, लेकिन ये क्वालिटी देखें, ये बड़ी सस्ती क्वालिटी लग रही है। दे शुड बी बेटर ना। और ये मैं कह रहा हूँ, ये एक ज़रा हार्ड टच है, ये आपकी सारा सॉफ्ट लाइक
द क्लॉथ लाइक मटेरियल लगा हुआ है एंड दीज आर फॉर योर एयर स्कार्फ के फैंस लगे हुए हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ही ना सामने से कवर्ड हो रहा हूँ, तो मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक भी मैं फील कर सकता हूँ। दिस रेल के जब भी अपनी सीट आगे करें तो ये ऑटोमेटिकली आगे मूव हो जाती है, देख सकते हैं आप। ये आपकी मेटल है, दिस इज़ अ प्लास्टिक साइड से। और इस गाड़ी में बैठने के लिए इट्स नॉट वेरी लो, बट आपको फिर भी एक थोड़ा सा साइजेबल नीचे जाना पड़ता है। एंड यू गॉट AMG alloy, yet this is standard one, and this is floor mounted. Your accelerator pedal, that's your brake pedal, और ये metal है, that's your dead pedal, और ये Mercedes floor mats भी हैं। And talking about this is your e-brake, and these are your light controls. Headlight controls ये हैं auto, these are your beams, ये parkings हैं, these are for your parking lights, ये आपकी dashboard illumination का है, that's your again ये for your parking lights। और जितना भी क्रोम है ये फ्लो कर रहा है, ये पियानो है, ये ज़रा साटन है। मूविंग एट द इंटीरियर ऑफ दिस कार, दिस हैज़ टू बी वन ऑफ माई फेवरेट मर्सिडीज इंटीरियर एराज, स्पेशली द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस अलॉन्ग विद दैट ये ब्यूटीफुल आपका जो एक सेंट्रल डैश आ रहा है, इसके बाद लोअर डैश आ रहा है। दिस इज़ वेरी गुड। इवन जो नई एस क्लास का डिज़ाइन है वो भी अच्छा है, लेकिन दिस वॉज माई पर्सनल फेवरेट। और बाय द वे इस टाइम मैंने जान के रूफ ऊपर की हुई है, एंड यू कैन जस्ट सी के हाउ गुड द इंसुलेशंस आर, एंड दैट्स योर रियर रीडिंग लाइट। ये फैब्रिक टच है, इट्स सॉफ्ट, लेकिन दिस इज़ मल्टी लेयर्ड। और ये आपका प्लास्टिक है जो आपका सेक्शन यहाँ अटैच होता है। यू डू हैव योर हेड्स अप डिस्प्ले, दिस इज योर अपर डैश, एंड इसमें स्पीकर भी इंटीग्रेटेड है, एंड सॉफ्ट टच है सारा। अलॉन्ग विद दिस योर ग्रे स्टिच इज गोइंग ऑल द वे हेयर। साथ ही एक पूरी ये जो दरवाज़ों से पीछे जा रही है ये भी पूरी अपर डैश पे रैप अराउंड हो रही है। यू हैव गॉट योर कॉर्नर टर्बाइन स्टाइल A1 सेर, पियानो आउटलाइनिंग है, क्रोम इंसर्ट्स हैं, एंड यू आल्सो हैव लाइट्स टू, आप देख सकते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक बहुत बहुत अच्छा लगता है। डैम्परिंग देखें, कॉर्नरिंग देखें, ये भी सब क्रोम है। लाइक आई रियली लव दीज। ठीक है, इसके बाद ये भी सारी आपकी क्रोम आउटलाइनिंग जा रही है, ये भी आपकी सारी क्रोम आउटलाइनिंग जा रही है। ये पूरा वुड कंटिन्यू हो रहा है विद दिस 4 फिन्स, क्योंकि अगेन आई रियली लाइक दिस। ठीक है, और ये आपके देखें फिन्स, इनकी क्वालिटी देखें, इस तरह यू कैन एक्चुअली लॉक देम, मतलब इस तरह नो एयर फ्लो, एंड दैट्स विद द एयर फ्लो। ठीक है, दैट्स योर स्टार्ट स्टॉप स्विच, एंड अगेन illuminated है। अंदर you have this patterns, turbine style pattern, स्टार्ट स्टॉप का ये है। ये पूरी आपकी सिल्वर लाइनिंग फ्लो कर रही है, एयर बैक देयर टू, ये एक थर्ड स्टेज जा रही है आपकी। एंड ये भी सारा आपका सॉफ्ट टच है, ये भी सारा आपका सॉफ्ट टच है। दैट्स अ ग्लव बॉक्स व्हिच इज लॉकेबल। ये सारा क्रोम में होता है, बैटरी बैटरी ये ज़रा स्क्रैची है, एंड ज़बरदस्त डैम्प्ड बड़ा ज़बरदस्त है। अंदर से फुली लाइंड है। ये को मर्सिडीज़ फ्रेग्रेंस टू, जो आपका मर्सिडीज़ का डिस्पेंसर है वो भी डल है इसमें, एंड ये स्क्रैची ये होना नहीं चाहिए, एंड अ पेन होल्डर टू, दैट्स हाउ यू पुट इट बैक। आफ्टर दैट दैट्स योर वाटरफॉल स्टाइल सेंट्रल कंसोल। इन दिस अगर हम बात करें तो यू हैव ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, नॉट ट्राई जोन, तो ईच पैसेंजर अपना टेम्परेचर यहाँ से सेट कर सकता है। दैट्स योर AC कंट्रोल, रीसेक्रेटिंग योर सिंक, रियर डिफॉगर। मेन्यू में हम जाके वी कैन, ये जितना भी इसका कंट्रोल है फॉर योर एयर कॉन वो आपका सारा थ्रू मेन्यू होता है, तो यहाँ से जा सकते हैं। मैक्स डिफ्रॉस्टर, ऑटो, फैन स्पीड, दैट्स योर एयर डायरेक्शन, दैट्स योर पैसेंजर का टेम्परेचर। नीचे भी लाइक द अबव, अगेन द क्रोम पैटर्न्स, अगेन द पियानो ब्लैक्स, और इन बटन्स की ना एक फील बहुत अच्छी है। लाइक अगर मैं आपको दिखा सकूँ, द फील इज़ वेरी गुड। ये तो अभी अंदर बैठ के ना मुझे बाहर की बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। ऑलराइट, और ये इट्स अर्ली मॉर्निंग टू, दिस इज़ अबाउट यस 7:15। सो ओवर हेयर हमारे पास ये कुछ बटन्स हैं जो कि मेरे ख्याल से कोई सेंस में आते हैं। टेलीफोन, नावी मैप जो चलता नहीं है पाकिस्तान में, रेडियो मीडिया, ये, और वी कैन गो विद द कार, क्विक एक्सेस मेन्यू, स्टार्ट बटन, एंड योर हैज़र्ड स्विच। आप देख सकते हैं कि ये भी ब्लिंक करता है। एंड आई विश कि यहाँ एक ट्रायंगल वो हैज़र्ड स्विच का दरमियान में होना चाहिए था, देयर इज नो क्लॉक, क्योंकि इसके बाद से मर्सिडीज़ का वो जो कॉन्ट्रैक्ट था फॉर अ क्लॉक, वो जो IWC की थी, JWC IWC, आई एम फॉरगेटिंग अ बिट, वो आपकी क्लॉक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। देयर इज नो क्लॉक हियर। ये वुड सारा फ्लो कर रहा है, तो क्वालिटी इज़ फार बेटर। इसी तरह का वुड मैंने C क्लास में भी देखा था, बट दैट लुक्ड वेरी चीप। दिस लुक्स वेरी पॉश, और ये आपका एक पूरा रैप अराउंड चल रहा है, एम्बियंट लाइट फ्लो कर रही है। आपका ये जितना भी सेक्शन है, दिस इज ऑल सॉफ्ट पैडेड, तो मेरे जैसा बंदे के लिए माई लेग वुड बी एट पीस, दैट्स योर स्टिच। एंड आफ्टर दैट ये आपका सारा
क्रोम आउटलाइन जा रहा है, एंड इफ आई ओपन दिस अप तो वी हैव wireless charger. I guess yes, we have a wireless charger, a Type C port, a household style port, 2 cup holders, और again जैसे मैंने आपको बताया कि आप इन्हें बाहर भी निकाल सकते हैं एंड यू कैन लॉक इट, और ये अब लॉक हो गए, ठीक है। ये इसके एडजस्टेबल हैं और वायरलेस चार्जर है। आई डोंट थिंक सो कि वेंट है अंदर, लाइक देयर इज नो वेंट इनसाइड। इसमें MBX का अपडेटेड वर्जन आया था। ऑलराइट, सो ओवर हियर एक तो आपके पास ये सारा अगेन पियानो में है, क्रोम टच इज फ्लोइंग ऑल द वे हियर, दैट्स योर डायनामिक मूड सेलेक्ट। इसमें आप गाड़ी के अपने चेंज कर सकते हैं। यू वांट द कार इन कंफर्ट, यू वांट द कार इन इको, यू वांट द कार इन स्पोर्ट और इन इंडिविजुअल। दैट्स योर पार्किंग सेंसर्स ऑफ का बटन। 360 कैमरा आप इस गाड़ी में एक्टिवेट कर सकते हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ। ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑलरेडी इस गाड़ी में सेंस बनता है। वॉल्यूम टू इंक्रीज और डिक्रीज योर वॉल्यूम, और आप देख सकते हैं कि इसकी बड़ी एक अच्छी फिनिश भी है, लाइक प्रॉपर्ली डैम्प्ड है, वेरी गुड फिनिश। आफ्टर दैट इन ऑर्डर टू टर्न दिस ऑफ, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं एज यू विश, एंड दैट्स योर सीट बेल्ट वार्निंग। और ये जो क्रोम है ये मतलब बड़ा प्यारा ना बैक फ्लो करता है इस तरह। ओवर हियर यू गॉट योर बैक, ट्रैक चेंज, होम, दैट्स योर स्लाइडर, जो कि आप यहाँ से देखें मैंने स्लाइड कर रहा हूँ। अलबत्ता दिस इज़ इन माई फेवरेट टू बी ऑनेस्ट, और आई वुड रादर जस्ट टच द स्क्रीन टू बी ऑनेस्ट। दिस इज़ अ टच स्क्रीन ऑल्सो, ठीक है। आई वुड रादर टच द स्क्रीन। हम स्क्रीन पे आते हैं। दैट्स योर बैक बटन, होम बटन, आपका स्विvel व्हील है टू मूव अबाउट, ठीक है जी। बैक फॉरवर्ड यू कैन डू एनीथिंग विद दिस। ओवर हियर थ्रू दिस बटन आपकी गाड़ी की जितनी भी विंडोज़ हैं वो सारी नीचे हो जाती हैं, ठीक है। एंड थ्रू दिस या जितनी गाड़ी की विंडोज़ हैं ऊपर भी हो जाती हैं। एंड थ्रू दिस बटन आपका ये सेंट्रल कंसोल अनलॉक हो जाता है। 2 टाइप सीज हैं, फेल्ट अंदर से लगा हुआ है। गुड, आई रियली लाइक दिस कि अगर आप बैठे हैं तो इफ़ योर पैसेंजर वांट्स टू ओपन तो वो खोल सकते हैं। एंड दैट्स योर विंड डिफ्लेक्टर मोड, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड दैट्स हाउ यू ओपन योर रूफ, वो भी मैं आपको एट द एंड बताता हूँ हाउ टू डू दैट। वी हैव एन AMG स्टाइल व्हील, जो कि इसमें स्टैंडर्ड नहीं आता। अगर आप AMG लें तो उसमें स्टैंडर्ड है। दिस इज एन AMG स्टाइल व्हील, इट्स अ 3-spoke व्हील विद दीज 2 strips ऑन द कॉर्नर। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज अ 5-spoke व्हील भी उस तरह, ठीक है। AMG लेदर ये लगा हुआ है, कॉन्फिडेंस देता है। यू हैव सॉफ्ट लेदर ऑन द टॉप। दैट्स अ गियर लीवर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अप फॉर रिवर्स, सेंटर फॉर न्यूट्रल, डाउन फॉर ड्राइव, और यू प्रेस दिस टू पार्क। लेकिन ये बहुत ही स्क्रैची है। लाइकवाइज आपके टर्न इंडिकेटर के स्टॉक्स ये लगे हैं, और टॉप पे आपके वाइपर स्टॉक्स हैं। एंड इफ़ यू प्रेस दिस तो आपके जेट्स ऑन हो जाते हैं। इस गाड़ी में थैंकफुली यू हैव पावर्ड स्टीयरिंग व्हील, तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है, एंड इट्स पावर्ड, एंड दीज आर योर ब्यूटीफुल स्क्रीन्स। आई जस्ट लव देम। एक तो ये फेस लिफ्ट में बड़ी हो गई थी, आप देख सकते हैं आपका पूरा क्रोम बेजल जा रहा है। अलबत्ता इसके बेजल्स थोड़े ज़रा चौड़े हैं, बट फेस लिफ्ट में ये भी एड्रेस हो गया था। एंड दिस इज़ ऑल्सो टच स्क्रीन, तो वेरी विन विन सिचुएशन। एंड क्योंकि ये आपका AMG है, आपका स्टैंडर्ड में भी आते हैं, और ये आपके बड़े लाइक कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग पेडल्स भी लगे हुए हैं ओवर हेयर। सो यस, ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील जी, दैट्स ए मर्सिडीज एम्बलम, सॉफ्ट पैडिंग है ये। एंड यहाँ भी सॉर्ट ऑफ 2 स्पोक अगेन जा रहे हैं। वी हैव आवर बटन टू स्वाइप थ्रू दिस, यहाँ से होम, और यहाँ से आई कैन गो अबाउट कि मुझे क्या चाहिए, एंड यहाँ से आई कैन गो बैक। ये मैं आपको कस्टमाइजेशन दिखाता हूँ इस गाड़ी में, क्योंकि आपके फुल अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। तो दैट्स योर स्पीड सेट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, जो स्पीड सेट जो आपने की हुई है उसे इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, लिमिटर और फ्रंट कोलिजन वार्निंग। थ्रू दिस आप अपने ये सेंट्रल डिस्प्ले में मूव कर सकते हैं, जैसे ये देखें, एंड दैट्स टू गो बैक। और इस तरह आप यू कैन गो एट होम। दैट्स योर वॉइस असिस्टेंस। दिस इज़ योर स्टार बटन, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन। ये आपका सब पियानो में है। क्रोम अगेन फ्लो कर रहा है, बड़ा एलिगेंटली फ्लो कर रहा है। दीज आर द 360 कैमराज ऑफ द कार। आई एम सॉरी, ये इसकी बीप कर रही है। तो आप देख सकते हैं द कैमरा क्वालिटी इज़ रियली गुड। यू हैव गॉट डायनामिक गाइडलाइंस हियर, एंड प्लस द ग्राफिक्स देखिए, मेरे पास बर्ड आई व्यू भी है। मैं चाहूँ तो इसको रियर पे भी लेके जा सकता हूँ, 360 कर सकता हूँ, और ऑन द 4 कॉर्नर्स के मेरे साइड ये पता चले कि मेरे साइड आर्चेस और साइड से कितनी जगह है। मैं फ्रंट कर सकता हूँ, आई कैन गो विद द फ्रंट पोर्शन ऑफ दिस, और इस तरह लाइक द कंप्लीट 360 व्यू। और अगर मैं इसे पार्क करूँ तो द बीप्स आर गोना गो अवे। और इस टाइम गाड़ी जो है बंद हो गई है और वो अपने ऑटो स्टार्ट पे है। तो आई डोंट नो कि इसकी बैटरी की क्या कंडीशन है, तो फिलहाल मैंने ऑटो स्टॉप बंद कर दिया इसका। स्पीडोमीटर,
योर रेफ काउंटर, जो कि अभी दूसरे में मैं इसे ज़रा चेंज कर देता हूँ। यस, यह हमारा रेफ काउंटर आ जाता है। एंड ऑलराइट, यहाँ आपकी इंडिकेशंस आउटसाइड टेम्परेचर है, योर adaptive cruise, your time, your speed limiter, your digital speedometer, and no, I don't want it. Nope. यहाँ you've got your range, your kilometers driven, your parking indication, और आपका इंडिविजुअल मोड है और अभी आप पी में है। तो अगर इसमें सर्कुलेट करूँ तो आपके फुल स्क्रीन भी आ जाता है अगर आप चाहें। एंड विद दैट आपके फुल अडेप्टिव क्रूज आ जाएगा। उसके बाद वही एवरेज मीटर है, फ्रॉम स्टार्ट है, माई एक्सेलरेशन है, बूस्ट है, कंजम्पशन है, एंड यस माई डिजिटल स्पीडोमीटर है। अगर मैं यहाँ हूँ तो इसमें मेरे पास आई हैव माई कंजम्पशन मीटर जो कि सेंटर में भी आ रहा था, वो उसका मैं मीटर पूरा ला सकता हूँ। माई इको मीटर आ जाता है, एंड दैट्स माई व्हाट यू से माई मैप्स। ये देखिए यहाँ ये चलते नहीं है मैप्स। और ये मेरा जी फोर्स मीटर है, द पावर ई की चार्ज, एंड यस दैट्स माई अडाप्टिव। तो मैं इसे टॉप पे ही रखता हूँ बिकॉज दैट्स हाउ आई लाइक इट। परफेक्ट। अब मैं स्पीडोमीटर में क्या कर सकता हूँ, स्पीडोमीटर में अपनी क्लॉक ला सकता हूँ। ऑलराइट, इसके साथ साथ फ्रॉम स्टार्ट की एवरेज है, फ्रॉम रीसेट की एवरेज है, एंड यस राउट की आ जाता है, नो ब्लूटूथ। ऑलराइट, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आई कैन चेंज माई ड्राइविंग मोड्स। तो स्पोर्ट में इट्स लाइक दिस, कंफर्ट में इट्स लाइक दिस, इको में इट्स लाइक दिस, एंड इंडिविजुअल में इट्स लाइक दिस। आई मच प्रेफर टू टच रादर देन मूव दिस व्हील, क्योंकि मुझे व्हील इतना कोई इंटुएटिव नहीं लगता। आपके पास ये आपकी होम स्क्रीन आ जाती है। इन दिस यू हैव योर फोन, योर नावी, योर रेडियो, योर मीडिया, कंफर्ट, इन्फो एंड मर्सिडीज ऐप्स सेटिंग्स हैं। तो और ऊपर से स्वाइप डाउन नहीं कर सकते आप। कंफर्ट में अगर मैं जाऊँ तो आपके पास सबसे पहले अगर मैं इसके इंफोटेनमेंट में जाऊँ तो ये देखिए डिजिटल टेम्परेचर फॉर बोथ द पैसेंजर्स, योर फैन स्पीड, एयर क्वालिटी आ जाती है, योर एयर डायरेक्शन है, ऑफ है, मैक्स है, रियर है, सिंक है, रीसर्कुलेटिंग और एसी है। एंड इफ़ आई क्लोज दिस अप तो आपके पास कंफर्ट में पैसेंजर ड्राइवर अपनी सीट किनेटिक्स में बैक रेस्ट एंड सीट सरफेस, बैक रेस्ट, we're not gonna change this, सीट हीटिंग एंड बैलेंस आप चेंज कर सकते हैं, हमें हीटेड सीट्स नहीं चाहिए इस टाइम। सीट किनेटिक्स में रिलैक्स विद स्लाइट सीट मूवमेंट। ऑलराइट, गाड़ी में एम्बियंट लाइट्स फुल हैं एंड मल्टी कलर है, मल्टी कलर एनिमेशन ऑफ है, वेलकम लाइट्स ऑन है, क्लाइमेट के साथ ऑन है, और वी नॉट गोना चेंज एनीथिंग। हम ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, इस गाड़ी की ब्राइटनेस फुल मैक्स हुई हुई है, और ब्राइटनेस जोन्स आप देख सकते हैं किस तरह आपकी लाइट आती है। इन्फो में आप बेसिकली व्हीकल का एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग चेक कर सकते हैं, इंजन के रेव्स कितने हैं, योर इंजन टॉर्क, योर परफॉर्मेंस, योर टेम्परेचर गेजेस, योर ऑयल गेज, एवरीथिंग लाइक दैट। कंजम्पशन में आपकी फ्यूल कंजम्पशन और एवरेज ओनर्स मैनुअल, ठीक है। अगर सेटिंग्स में जाऊँ मैं गाड़ी की तो ओवर हेयर आपके पास स्टैंडर्ड मर्सिडीज़ है विद स्टैंडर्ड अलॉयज, ठीक है। इस गाड़ी में EPS, योर लेन डिपार्चर, यू कैन टर्न दिस एक्चुअली ऑन टू, जो आपकी एक्टिव स्टीयरिंग असिस्ट हो जाता है। योर हेड्स अप डिस्प्ले भी आप ऑन कर सकते हैं, इस टाइम ऑफ है, बट अगर मैं इसे ऑन करूँ वो दे यू कैन सी माई हेड्स अप डिस्प्ले। ऑलराइट, दैट्स माई हेड्स अप डिस्प्ले। इसमें स्पीड आप देख सकते हैं आ रही है, अलॉन्ग विद दिस आपके पास लिमिटर आ रहा है, स्पीड लिमिट है, माई फ्रंट डिस्टेंस आ रहा है, एंड यस जो फ्लिकर है एक्शन लाइफ में नज़र आ रहा, वो अभी नज़र आ रहा है, इसे मैं बंद भी कर सकता हूँ। तो इट्स ऑफ एट द मोमेंट, खैर मैं इसे ऑन ही करूँ। इसके बाद आप असिस्टेंस में कैमरा एंड पार्किंग में जा सकते हैं। आपको वार्न अर्ली, मतलब कितनी देर में आपको वार्न करे, वार्न टोन क्या होनी चाहिए, ऑडियो फेड फॉर वार्न, मतलब ऑडियो लगा तो फेड हो जाए। इसके बाद ऑटोमेटिक रिवर्स व्यू, कैमरा ऑन होना चाहिए और मैनूवर असिस्ट ऑन होना चाहिए। ऑलराइट, ट्रैफिक साइन असिस्ट है, विजुअल ऑडियो विजुअली ऑफ होना चाहिए, और इसकी वार्निंग्स भी इन द सेंट्रल डिस्प्ले है। एंड आफ्टर दैट वी हैव एक्टिव लेन कीप, जो कि सिर्फ वार्निंग है और एक्टिवेट नहीं हुआ। और इसके साथ साथ एक्टिव ब्रेक असिस्ट इस टाइम मीडियम है, मतलब वो जो गाड़ी फ़ौरन स्लाम करती है तो लेट ही है ये पाकिस्तान में, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। अटेंशन असिस्ट आ जाता है, इन विच इट्स स्टैंडर्ड, इट्स नॉट सेंसिटिव, कि मतलब आपको गाड़ी when the car thinks कि you are getting a bit tired तो आपको करेगी। ट्रैफिक लाइट भी ऑफ हुआ हुआ है इस गाड़ी में, मतलब ट्रैफिक आपको एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट, बिल्कुल एक्टिव लेन चेंज असिस्ट ऑफ है, मतलब वो गाड़ी विल असिस्ट यू इन दैट।
आफ्टर दैट व्हीकल में हम जाएँ तो डायनामिक सेलेक्ट कन्फिगर हम कर सकते हैं रिक्वेस्ट एट स्टार्ट। इंडिविजुअल सेलेक्ट में आप ड्राइव कर सकते हैं, आपको कैसी चाहिए ड्राइव। इसमें से स्पोर्ट पे है, स्टीयरिंग कंफर्ट पे है एंड EPS इज़ एट स्पोर्ट, तो वो आप कन्फिगर कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट एट स्टार्ट का मतलब है स्टार्ट पे इट्स ऑन दैट। विंटर टायर्स इस गाड़ी पे नहीं डले, लेकिन अगर डले तो आप इसकी स्पीड लिमिट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट मतलब अगर मैं अपनी हाइट यहाँ रखूँगा तो इसका ऑटोमेटिकली एडजस्ट माई मतलब सीट को ना, और स्टेयरिंग व्हील भी उस तरह ही करेगी, या मैं सिर्फ स्टेयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट करूँ। खैर इस टाइम मैंने अपनी ओन पोजीशन में किया हुआ है, मैं ओनर की इतनी पोजीशन नहीं छेड़ना चाह रहा। सीट बेल्ट एडजस्टमेंट है बिल्कुल। एक्यूस्टिक लॉक, दिस इज़ अ गुड फीचर। एंड ऑटोमेटिक डोर लॉक्स बिल्कुल। इसके बाद ऑटोमेटिक फोल्डिंग, देखिए इस टाइम ऑफ हुए थे, लेकिन अब मैं करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली डोर मिरर्स के फोल्ड भी होंगे साथ, उसको मैंने ऑन कर दिया। एम्बिएंट लाइट्स मैंने आपको बता दिया। लो बीम हेडलैम्प्स, राइट साइड ट्रैफिक, लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड हम कंट्री हैं तो हमने राइट साइड ट्रैफिक सकते हैं तो उसकी बीम एडजस्टमेंट होती है। एक्सटीरियर लाइटिंग डिले कितना होना चाहिए, 15 सेकंड्स हैं कि गाड़ी ऑफ करें तो लाइट कितनी देर चले। इंटीरियर लाइट डिले आ जाता है, वो भी आपको मतलब यू कैन सेट द टाइम। इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम ऑन है, लोकेटर लाइटिंग ऑन है, जिसमें वो गाड़ी ये अपनी मिरर्स के नीचे भी इसके लाइट्स है ना, तो वो भी शाइन करती हैं। एंड इन सिस्टम व्हाट डू वी हैव इन सिस्टम्स, ऑलराइट, डिस्प्ले एंड डिज़ाइन, ठीक है। इस टाइम ये क्लासिक हुआ है, बट इफ़ आई गेट इन स्पोर्ट तो दिस इज गोना चेंज। ये स्पोर्ट हो गया, और इसे मैं प्रोग्रेसिव करूँ तो प्रोग्रेसिव में ये हो गया। और लेट्स गेट इट इनटू क्लासिक, क्लासिक ही ठीक लग रहा है। इसमें वो AMG वाला नहीं है, वो जो AMG वाला नहीं होता। ब्राइटनेस डिस्प्ले है, डे एंड नाइट डिज़ाइन ऑटोमेटिक पे हुआ हुआ है। एंड एक्सेप्ट दैट वी हैव covered everything in a lot of detail. Yes. और मैं इस तरह डिस्प्ले ऑफ भी कर सकता हूँ, सिस्टम भी ऑफ कर सकता हूँ if I want. And these are Mercedes apps, तो yes, यहाँ आपके पास टेम्परेचर आ रहा है, योर होम स्क्रीन सर्च कर सकते हैं, और ये आपकी नोटिफिकेशन वगैरह कोई हैं तो वो नहीं है, तो दैट्स इट। और इसमें आप ये देखें कितना प्यारा एम्बिएंट लाइट फ्लो कर रही है, तो इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। आफ्टर दैट आई हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम। फ्रंट पे मेरे पास बहुत अच्छी है, सीट्स भी बहुत अच्छी हैं, मेरे बोल्स्टर्स ज़बरदस्त हैं, एंड यस आई रियली डू लाइक इट। इट्स वेरी वेरी नाइस है, बहुत अच्छा है, सीट्स बहुत अच्छी हैं एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। दिस इज़ योर frameless rear view mirror. This looks very posh, I must say. Your SOS button, your Me button, your sunglasses holder. Wow, इसका ये तक बाहर वाला भी फेल्ट किया, वरना होता है ज़्यादातर बाहर प्लास्टिक होता है, अंदर फेल्ट होता है। ऑलराइट, दिस इज योर रीडिंग लाइट, आप अपनी रीडिंग लाइट ऑन कर सकते हैं। रीडिंग लाइट्स आपकी ये मिरर्स के नीचे लगी हैं, आप देख सकते हैं, तो दे गेट ऑन। दैट्स योर रियर रीडिंग लाइट्स का ये बटन है। सारी लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, एंड यस, ठीक है। इसका इस गाड़ी की अगर सन वाइज़र की बात करूँ तो सन वाइज़र इज़ डिसेंट, वैनिटी मिरर भी है, एंड यू हैव योर LED लाइट ऑल्सो देयर। इसके साथ साथ दिस इज़ नॉट एक्सटेंडेबल, द क्वालिटी इज़ वेरी गुड, एंड ये देखें attention to detail, and these are your microphones. Along with this, the same situation right there, you have a card holder भी साइड पे जैसे आपने यहाँ बना हुआ है। अब let me put the roof down, ठीक है। अप्लाई द ब्रेक्स, ऑलराइट, मुझे इसकी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, और आई हैव टू पुश दिस डाउन, सॉरी, अब ये खुल जाएगा, ये देखिएगा द प्रोसेस। और आपको ये होल्ड करना पड़ता है डाउन, जब तक पूरा डाउन नहीं होता, और एक बाहर जाके आपको एहसास हो रहा है कि ऑलराइट दिस इज हॉट, ठीक है। और इफ आई प्रेस दिस नाउ, ये देखिएगा, ये विंड डिफ्लेक्टर ऊपर से हो गया ऊपर, एंड पीछे से भी विंड डिफ्लेक्टर ऊपर आ गया, और आपके पास ये भी सारा क्रोम टचेस आ रहे हैं। सो टर्न ऑफ द कार एंड यस, लेट्स गेट आउट, एंड लेट मी शो यू कि जिस टाइम ये एंड हो जाता है तो इसका जो डिफ्लेक्टर है, ये इसका पूरा पैनल फ्लैट हो गया, और इसका डिफ्लेक्टर भी नीचे चला गया विद दिस एस्पेक्ट। और इस टाइम इट्स रियली गेटिंग हॉट, और गाड़ी में जब अंदर था तो इट वाज़न्ट एक्चुअली फीलिंग के ये गर्मी लग रही है। ये इंसुलेशंस वर सो गुड एंड सो ऑन पॉइंट। इंसुलेशंस की बात कर रहा था, आप देखें यहाँ भी कितनी अच्छी इंसुलेशंस हैं, लाइकवाइज यहाँ भी, और जितने भी आपकी पार्ट है ना सारा, द इंसुलेशन आर वेरी गुड। इवन आपका पार्ट जा रहे हैं, दिस इज सॉफ्ट,
ये भी सॉफ्ट टच है, दिस इज़ ऑल सॉफ्ट, मल्टी रेड रूफ विद द लाइंस हेयर, तो वेरी वेरी गुड। हेड रेस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एडजस्टेबल हैं, ये देखें आप, क्रोम, योर हीटेड स्कार्फ्स। क्योंकि इस गाड़ी में बर्मेस्ट साउंड सिस्टम है, तो क्वालिटी तो वैसे ही ज़बरदस्त है, लाइक इट्स अमेजिंग। एंड यू हैव गॉट दिस पियानो टचेज, जो टर्बन स्टाइल आपके 6 एयरबन्स हैं, लवली ऑन द वर्ड, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इनकी अगर आप क्वालिटी देखें ना, तो इट डजंट फील एम्प्टीनेस। मतलब कुछ मॉडल्स में आपको लगता है कि बिल्कुल स्क्रैची है, लेकिन द क्वालिटी इज़ रियली गुड, मतलब बहुत ही सॉलिड क्वालिटी। द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, लेकिन जो अंडर थाई सपोर्ट का होना है ना, दैट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स द कंफर्ट टू अनदर लेवल। टू डिटेल की बात करें तो दिस इज़ ऑल क्रोम विच इज़ वेरी गुड, लेकिन ये जो आपका डोर लॉक है ये बहुत सस्ता है। लाइक इतना अच्छा मटेरियल है, यहाँ भी क्रोम होना चाहिए, लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली लुक्स वेरी वेरी चीप। एंड अबाउट द पेंट कलर, जैसे मैंने बताया, दिस इज़ अ स्पेशल वाइट, सो दिस इज़ अ मेटेलिक वाइट जो कि इस गाड़ी में आता है। हुक्स टू अटैच द रूफ, जब वो यहाँ आती है तो वो यहाँ हो जाता है, और ये आपकी ये जो डिफ्लेक्टर का पार्ट है ये रेज अप हो जाता है, लाइक वाइज योर रियर टू। जैसे मैंने बताया, तो डोर हैंडल्स की बहुत ही स्टर्डी फीलिंग है, एंड व्हेन यू ओपन देम तो आपको एक बहुत ही सॉलिड थड मिलती है। लाइक ये देखें आप, वेरी सॉलिड। और आप देखें जो दरवाजे हैं वो भी लॉक हो रहे हैं। मूविंग एट द पैसेंजर साइड जी, अगेन द सेम सिचुएशन, जैसे मैंने बताया, कॉर्नर विंडोज़ भी आपकी रोल डाउन हो जाती हैं वहाँ से। सेम सिचुएशन विद द पैसेंजर साइड टू, अगेन बिग हैवी डोर्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो रिव्यू की मैंने गाड़ी, और द कार इज़ अ वेरी गुड कार फॉर योर सेकंड और योर थर्ड कार, बट एज अ प्राइमरी कार, इफ़ यू हैव अ फैमिली, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पर्सन लाइक मी, उसके लिए तो बहुत परफेक्ट गाड़ी है, अकेला होता हूँ, बेहतरीन, लाइक अ सिंगल सीटर, प्रॉपर मॉडर्न फैशनेबल, ठीक है गाड़ी, तो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इन द वर्ल्ड। और इन तरह की गाड़ी जो है, तकरीबन इट विल कॉस्ट यू अबाउट 40 मिलियन, और 4 करोड़ रुपए की गाड़ी है। एंड इज़ इट वर्थ इट? लेट मी ड्राइव इट और मैं आपको इसमें बताता हूँ। और दिस इज़ अ रियर व्हील ड्राइव कार, इट्स नॉट एन AMG, उसमें फॉर्मेटिक आती है। तो चलिए, दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। कैन यू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,